So Jesus on the cross says it is finished. यीशु मसीह जब क्रूस पर गए तो उन्होंने कहा कि ये समाप्त हुआ। What did he mean by that? तो उसका क्या मतलब था? Number 7 in the Bible, 7 ये संख्या बाइबल में जो है, we know it represents fullness. इसका ये अर्थ है कि संपूर्णता। But fullness of what? संपूर्णता किस चीज का? Number 7 is representing what? Fullness of what? और संपूर्णता किस चीज की? God created everything in 6 days. और परमेश्वर ने सभी चीज की रचना 6 दिनों में की And he rested on the 7th day. और 7वें दिन पर विश्राम किया। So 7th day is the fullness of the old creation. तो 7वां दिन जो है उस संपूर्णता को दर्शाता है कि And परमेश्वर ने Jesus- अपनी सृष्टि करने के बाद आराम किया। And on the cross, Jesus is declaring the end of the old creation. और क्रूस पर यीशु मसीह जो है वो जो ओल्ड क्रिएशन है उसकी समाप्ति को बताते हैं। And the next day it is so number 7, the 7th day God rests and Jesus said it is finished. Now comes the first day और of new creation. क्रूस पर जब यीशु मसीह ने कहा समाप्त हुआ तो अभी एक नई शुरुआत हुई है। The first day, which is the first day of the week? अभी नई शुरुआत जो है उसका पहला दिन, पहले दिन में क्या हुआ था? Sunday is the first day of the week. संडे रविवार जो है हफ्ते का पहला दिन होता है। It says the Sabbath was a high day. लिखा है कि साबत जो है वो The पहला next दिन। Sabbath, Jesus gave up his spirit, and the next Sabbath was a high Sabbath. यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया और दूसरा दिन जो था वो सप्ताह का पहला दिन था। In the new creation, the first day we are on the high Sabbath. और जो नई सृष्टि जब हुई तो उसके पहले दिन में हम जो है नए साबत में हैं। Now when Jesus is lying in the grave on that Sabbath, और जब यीशु मसीह उस कब्र में थे उस साबत के दिन पर, one of the scholar Michael Morales writes, when on the Sabbath Jesus' body rests in the grave, he has taken both the old creation and the Mosaic law to their destined end. और जब उस कब्र में यीशु मसीह का शरीर था तो उन्होंने पुरानी सृष्टि और जो मूसा के द्वारा मूसा के समय पर जो सृष्टि थी उस दोनों का अंत किया था। मूसा के लॉ, मूसा का जो कानून था, लॉ था, व्यवस्था था, और पूरा creation he declares it is finished. So now number 7, और अभी हम फिर से संख्या 7 इसकी ओर and देखेंगे। we started with the stone jars. हमने शुरुआत की थी वो 6 पत्थर के गढ़ों के बारे में। 6, number 6 represents incompleteness. नंबर 6 जो है वो इस बात को दर्शाता है जो पूरा नहीं हुआ। If you open John chapter 2, यदि हम यूहन्ना की पुस्तक देखेंगे उसमें दूसरा it says अध्याय on the third day लिखा है कि तीसरे दिन there was a wedding. एक विवाह था On the third day और तीसरे दिन there was a wedding. एक विवाह था। Jesus rose on the third day. यीशु मसीह तीसरे दिन He was resurrected on the third day. वो जीवित हुए तीसरे दिन पर, And we believe on the resurrection और रेजरेक्शन पर हम जब देखते हैं there will be a wedding. एक विवाह होने वाला है। So John, तो यूहन्ना जो है the Gospel of John, यूहन्ना का सुसमाचार, he leaves he gives this hints, तो उसमें इन बातों का हिंट्स मिलता है हमें। beautiful connections. इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। The wedding is on the third day. शादी तीसरे दिन को हुई। Jesus rose on the third day, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, which is the first day of the new creation, जो नई सृष्टि का पहला दिन है, and there is a wedding, और एक विवाह है वहाँ पर, and the 6 jars standing there. और जो 6 गड़े हैं जो खड़े हैं वहाँ पर। We worthless, useless people. हम जो है जो वर्थलेस लोग हैं जिनको On कोई the third day, on वैल्यू the नहीं है, resurrection, when he comes, जब रेजरेक्शन में यीशु मसीह जब आते हैं he will fulfill us. He will bring us to completion. तो यीशु मसीह हमें पूर्ण बनाएंगे On the third day, तीसरे दिन। again, chapter 4, John, he is talking to that Samaritan woman. और यूहन्ना में 4था अध्याय हम शुरुआत में जब देखते हैं कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से जब बात करते How हैं, many husbands did she have? उसके कितने पति थे? 5 husbands, and the one she was with, then he was not her husband.
उसके 5 पति थे और जो करंट में जिसके साथ वो रहती थी वो उसका पति भी नहीं था। 6 men. 6 पुरुष। Again incomplete. अपूर्णता। That woman, वो स्त्री like many of us, हमें से प्रत्येक के was जैसा trying to find her faith, her confidence, her refuge, वो अपने विश्वास को खोजती है, वो अपने छिपने के स्थान को खोजती है। her security in a man, और उसका वो एक पुरुष में अपने सिक्योरिटी को खोजती है। and in that process she ends up having 6 men. और इसी जब ये खोजने के प्रोसेस में वो 6 पुरुष के साथ रह चुकी है। Still incomplete, still unsatisfied, फिर still भी with a void अपूर्ण है, inside. फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है। And John chapter 4 it says on the 6th hour they started conversing. और लिखा है कि 6th hour में यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से ये बात And करते Jesus हैं। says an hour is coming and it is now और यीशु कहते हैं कि एक समय आने वाला है जो कि अभी है। number 7 he comes as the true bridegroom. तो नंबर 7 जो है 7 संख्या जो वो खुद है वो आते हैं। And what that woman could not find in 6 men, और वो स्त्री जो 6 पुरुष में नहीं पा सकी she finds purpose in the true bridegroom. तो उसका मकसद जो है उस दूल्हे में वो स्त्री प्राप्त करती है। We might be looking here and there, we might be struggling. और हम शायद यहाँ वहाँ ताक रहे, हम जूझ रहे अपने जीवन में। It is only the true bridegroom that brings true happiness and fulfillment in our lives. तो केवल यीशु मसीह ही वो दूल्हा है जो उस पर्पस को हमारे जीवन में ला सकते हैं।